formatting. So after selection, I'll go to conditional formatting. Conditional formatting may, let's suppose I want to highlight the cells having greater than 95% attendance. So greater than पे click करके I'm mentioning it 95 and okay, this is how it will be highlighted. Similarly, you can highlight the cells having the, let's suppose you want to highlight having the attendance lesser than 75. Okay, and this is how it will be highlighted. You may change the colors. So like this, you may apply the between equal to text that contains date of occurrence and duplicate values. Duplicate values बहुत use होता है. Let's suppose you want to check कि इनमें से कितने students इस list में है, next list में. Let's suppose कोई student रह तो नहीं गया. So what you have to do is you will paste the roll number list and find out the duplicate values. So you will be able to identify कितने से कितने student का journal रह गया है. You just need to, let's suppose you want to highlight the duplicate values. I selected, let's suppose, these 10 students and you want to check कि इनका कितना internal है. What you have to do is you have to paste it here. Select the column conditional formatting and you will highlight the duplicate values. You can see जहां जहां पे वो values होंगी, those will be highlighted like this. You will be able to identify the students. एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ. किसी भी वैसे तो आप किसी भी चीज पे अप्लाई कर सकते हो, बट इट इज बेटर टू अप्लाई दिस ऑन द न्यूमेरिक डेटा ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें you cannot apply on text. For example, greater than, less than, between. These are the things you will be able to apply on numeric data. So it's better to understand this with the help of numeric data. So I selected the percentage of student, then I'll go to conditional formatting, then highlight cell rules. From these many options, you may apply anything, or you may click to the more rules and you can give your own rule if you want to. Fine. So majorly you will be able to manage the things with the help of the formattings already available. ज़्यादातर इन्हीं का यूज होता है, तो it is very rare that you will apply your own rule, but yes, you have the option of applying the rules from here. Then few things are already available. For example, top 10%, bottom 10%, above average, below average. These are already available for numeric data. Let's suppose I want to get the top 10 students, top 10 items. Okay, so this will give you top 10 items. फिर उसके बाद आता है next thing is color scales. Let's suppose first of all I will clear the previous rule and I'll go to conditional formatting. Let's suppose I will give the color Y. So it will give the colors by the data available, on the basis of the data available. So what you can do is, if you want to change this rule, you can come to manage rules and you'll be able to get the rule ki kis basis pe the cells are being highlighted. So lowest values are being highlighted by red, percentile by 50 percentile by yellow, highest values are represented by green color. So this is how it highlighted the data. You may change it from here. 3 colors से ज़्यादा आप देना चाहते हो, you may give the more than 3 colors. So this is how conditional formatting works. So I'll not take much of your time. आज सिर्फ conditional formatting ही करनी है. So this is how you will select the data, then apply the rule. Next is, if you want to clear the rule, you just need to select that cell, clear rule from the selected cells, or you may apply the clear rule from the entire sheet and you'll be able to remove the highlight formatting. So let's suppose I'm using the clear rule. This is how you will be.
आई होप आप लोगों ने साथ साथ किया है। अगर बाई चांस नहीं भी किया है तो आई एम गिविंग यू 5-10 मिनट्स फॉर दिस। आप अपने एक्सेल शीट पे ओपन करके यू मे अप्लाई द हाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जहां पे दिक्कत आएगी प्लीज शेयर द स्क्रीन एंड आई विल हेल्प यू। इफ यू वांट कि मैं आपसे शेयर करूं तो आई विल शेयर द शीट जिसमें ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाइड होगा, बट दैट विल नॉट सर्व द पर्पस, क्योंकि ये बहुत इजी चीज है। यू मे अप्लाई इट ऑन योर ओन शीट। तो आप अपनी कोई भी एक शीट पे यू मे अप्लाई दी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जहां पे यू विल हैव द प्रॉब्लम आई विल शेयर द स्क्रीन। जहां पे भी दिक्कत है यू मे शेयर द स्क्रीन, आई विल हेल्प यू। सो आई विल होल्ड द सेशन फॉर 5 to 10 minutes and you may come up with your queries if you have any. Tomorrow you will not have class on Sunday, so what I will do is I will share the link of a form to upload the assignment. जो आपके पहले वाली 2 assignments हैं वो आप उसमें अपलोड कर देना। सेम ही फॉर्म यूज होगा टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। चारों असाइनमेंट आपकी उसी फॉर्म के थ्रू सबमिट होंगी। सो आई विल शेयर द लिंक इन द ग्रुप आफ्टर दिस सेशन, जिसमें यू विल अपलोड योर असाइनमेंट्स। कल वाला लेक्चर नहीं होगा, कल यू हैव टू प्रिपेयर द असाइनमेंट्स एंड अपलोड इट। अगर आपकी असाइनमेंट नहीं बनी है तो टेक द टाइम ऑफ टुमारो एंड अपलोड द असाइनमेंट्स। एक्सक्यूज मी मैम, तो वो हार्ड कॉपी में भी आपको देनी है सेशन के टाइम पे? नहीं। ओके मैम, थैंक यू। मैम ये अपलोड करना, ये तो हैंड रिटन असाइनमेंट्स हैं। जिनके हैंड रिटन है वो स्कैन करके अपलोड कर देंगे। पता है मैम, हमें 2 ही जिनकी असाइनमेंट पता है जो मैम ने दिया था। हाँ, अभी तक की 2 जो असाइनमेंट है वो दोनों आप अपलोड कर दीजिए। बाकी वाली अभी मिलेंगी आपको, अभी मिली नहीं है तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट, है ना? तो जो मैं Can you please share the ma'am? Can you please share the topics of assignments in the group, please? थैंक यू मैम। बेटे All टॉपिक्स 4 इज topics. ऑलरेडी गिवन बाय द पूजा मैम, नो? तो वो आप लोगों के पास ही है, यू मे शेयर इन द ग्रुप। अदरवाइज वो ऑफिशियली मुझे रिसीव होगा, ऑफिशियली आपको पता है ऑफिशियली चीजें रिसीव होने में टाइम लगता है। तो इफ यू हैव द कॉपी यू मे शेयर इन द ग्रुप, और लिंक मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। यू कैन टेक टुमारोज टाइम टू अपलोड दी असाइनमेंट्स। कल लेक्चर नहीं होगा, कल आप लोग सिर्फ असाइनमेंट्स अपलोड करेंगे। मैं अभी के अभी शेयर कर देती हूँ साइड बाय साइड, ताकि कोई प्रॉब्लम आनी होगी तो या आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा तो आप साथ के साथ पूछ पाएंगे। तो गिव मी 2 minutes, आई एम शेयरिंग दैट इन द ग्रुप। असाइनमेंट्स प्रिंटेड फॉर्म में भी कर सकते हैं या रिटन फॉर्म में ही करनी है अपलोड? सी आई वुड सजेस्ट कि एक ही प्लेटफॉर्म रख दीजिए आप लोग, उसको स्कैन करके और अपलोड कर दो। अगर आपने हैंड रिटन बना ली है तो आप उसको स्कैन करके अपलोड कर दो। मैम हमने टाइप्ड बनाई थी। हाँ जी, मैम जिस भी फॉर्म में है, अगर टाइप्ड है तो फिर डॉक फाइल अपलोड कर दो, टाइप्ड नहीं है तो फिर आप उसको स्कैन करके अपलोड कर दो। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम, जो आपने अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बताया है, हाँ तो जी, ये अप्लाई करके देखा है? जो आपने भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताया है वो अप्लाई करके देखा है, वो हो गया है। उसके अंदर एक और नीचे ऑप्शन आ रहा है आइकन सेट्स का, जिसमें डायरेक्शनल शेप्स और इंडिकेटर्स वगैरह आ रहे हैं। तो हाँ जी, हाँ जी। ये भी हम एक मिनट बेटा। हाँ हाँ, आप बताओ। मैम, जो इसके अंदर एक और ऑप्शन आ रहा है आइकन सेट्स का, जिसमें हाँ हाँ, डायरेक्शनल शेप्स और इंडिकेटर्स वगैरह आ रहे हैं। सेम तो पर्पस होता है। मैं अभी अप्लाई करके दिखा देती हूँ, अगर आपको चाहिए तो सेम ही चीज होती है, बस उसमें नहीं, कलर की मैंने जगह हाँ जी, वैसे तो हाँ जी आइकन्स आ जाते हैं वो और कुछ नहीं होता। आइकन्स आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ लाल हाँ हाँ, ग्राफ उसकी आ जगह रहे हैं। आइकन आ जाते हैं, सेम ही होता है। आप उसमें मैनेज रूल में जाके उन आइकन्स को चाहे तो चेंज कर सकते हैं, जो या रूल चेंज कर सकते हैं, जो भी आप उसका अप्लाई करना चाहते हैं। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। मैम MST 1 में फर्स्ट 2 यूनिट्स आएंगे? जी,
MST 1 में फर्स्ट 2 यूनिट्स आएंगे। Okay, ma'am. Thank you. फर्स्ट यूनिट बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स है और मतलब सिर्फ यही आएगा। सेकंड यूनिट वेब सर्च प्रोसेसिंग ये नहीं है सिर्फ। I think syllabus is already shared with you. यस मैम, सिलेबस से ही पूछ रही थी कि फर्स्ट यूनिट जो है वो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है और सेकंड यूनिट वेब सर्च वेब प्रोसेसिंग। जैसे टोटल 4 यूनिट्स हैं तो उसमें हाँ, सिर्फ हाँ। फर्स्ट यूनिट आएगी इसमें MST 1 में। 2 यूनिट्स आएंगी, 2 यूनिट्स, 2 यूनिट। ओके मैम। फर्स्ट 2 यूनिट्स बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स और आपका इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग है सेक्शन ए में। सेक्शन बी में वेब सर्च और वर्ड प्रोसेसिंग है। तो ये दोनों आएंगे आपके। ओके मैम, थैंक यू मैम। और मैंने साइड बाय साइड आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपका लिंक मैंने भेज दिया है। टुमारो यू नीड टू अपलोड द असाइनमेंट्स ऑन दिस। दोनों असाइनमेंट जो है आपकी सेम लिंक से हो जाएंगी। इनफैक्ट आपके चारों असाइनमेंट इसी लिंक से होंगे, तो यू मे स्टोर दिस लिंक। इसको सेव करके रख लीजिए और 1 2 जो हो चुकी हैं वो इसमें अपलोड कर दीजिए। Session is open for queries for 5 minutes, then I'll close the session. डायरेक्शनल या शेप कोई लगा रहे हैं या रेटिंग दे रहे हैं, ये खुद से ही उठा लेता है। लाइक जो मैंने हाँ, ये खुद से रूल इनिशियली ये खुद से उठा लेगा। जो भी आपका डेटा अवेलेबल होगा उससे वो अपने आप ले रहा है। हाँ हाँ, तो जो ऑलरेडी जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो खुद जो डेटा होता है उसको देख के अप्लाई कर देता है कि लेट्स सपोज टॉप 10 के लिए एक कलर चूज कर लिया और बॉटम 10 के लिए एक कलर चूज कर लिया और बीच वाले के लिए एक कलर चूज कर लिया। उसमें अगर आप चाहते हो कि ये रूल ना हो के कुछ और रूल हो तो वहां पे आप मैनेज में जाके और उसको चेंज कर सकते हो। ओके 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 ओके, गॉट इट मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। So session is open for next 2 minutes and then I'll close it. कोई query है तो you may come up. मैम असाइनमेंट हाथ से लेके सबमिट करने थे ना? हाँ जी, ये जो असाइनमेंट थे 1 and 2 ये हाथ से लिखने हाँ। वाले थे ना मैडम? अगर हाथ से लिखे हैं तो आप उसको स्कैन करके अपलोड कर दो, ठीक है मैम। है ना। और अगर आपने प्रिंट किया है तब भी वो हर दैट विल वर्क फॉर एवरी सिचुएशन नो। अगर हैंड रिटन है तो आप लोग स्कैन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आप आएंगे कब उसको सबमिट करेंगे तो आई डोंट नो कब है आप लोगों का सेशन। आई है कोई डेट शीट? 6-7 मार्च। अच्छा 6-7 का आ गया? 6-7 7 तो आज ही। जी मैम। तो आज आप लोग हैं जो मार्च मैम, मार्च। अच्छा 6-7 मार्च है ना? जी मैम।
आई प्रेफर कि आप लोग उसको अपलोड ही कर दो, तो कब तक आप लोग संभाल के रखोगे उसको? इट्स मैंने हाथ बेटर से कि लिखने में आपको पूरा बनाया हफ्ता भर लगा था। स्टिल अगर आप उसको स्कैन करके अपलोड करेंगे तो वो ऑब्वियसली वो दिखेगा कि दैट इज हैंड रिटन ना। मतलब उसका इफ यू वांट कि हाँ उसका कुछ अलग से मार्क्स दिए जाए, तो आई गेस थोड़ा तो बनता है, जिन्होंने मेहनत की है लिखने में उनका थोड़ा सा डिस्कशन होगा उस चीज में ऑब्वियसली। So that's all for today's session, and you have the link to upload the assignment. So you may use the tomorrow's session to upload the assignment. कल हम सेशन नहीं करेंगे, you will upload the assignments only, और assignment से related you may ask the queries if you have. Thank you class. Thank you so Thank much, you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Excuse me, ma'am. हाँ जी। Ma'am, actually, we got one assignment from Pooja ma'am's side, ma'am. And it comprises of like questions from Unit 1 and questions from Unit 2. So you are telling about the same? नहीं, what I got from even students side is कि you have 2 assignments. And even Pooja ma'am was saying that she gave you 2 assignments. So officially she didn't forward it yet. So that's why I'm not uploading that in the group. And I hope that is with the students. 2 assignments are with the students. It's not 1. Ma'am, actually, we have one PDF, and in that one, we have questions from Unit 1, and then in another page, we have questions from Unit number 2. But then, ma'am, Okay. in assignment, I mean, from English department, we 3 students are there, so we are unaware related to the same. So I wanted to know about the same. Okay, so I request the students to upload the assignment in the group, so which is forwarded by Pooja ma'am. Otherwise, I'll supply it. जैसे ही receive होता है. Okay, ma'am.